Now I am going to start exercise 9.1 of NCERT. There is only one exercise in this chapter and there are 16 questions in the exercise. So we'll do them one by one. First question is, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. So obviously हमारे पास कोई vertical pole है. This is the vertical pole. Name is AB. I have given. कोई रोप है जो पोल के जो भी हमारा टॉप है दैट इज ए उससे स्ट्रेच होके बिल्कुल टाइटली और ग्राउंड पे दोनों जगह टाइड है. तो ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया. दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस इज सी. सो AC is the rope and length is 20 meter. Find the height of the pole. Height is AB. So we have to find AB. If angle made by the rope with ground level is 30 degree. AC is the rope. Ground level is BC. So angle made is 30 degree. I hope so it is clear because it is an easy question. We have to write it. Let AC equals to length of rope. और कितनी दे रखी है लेंथ हमें 20 मीटर. AB equals to height of the pole. Height of the pole. BC is horizontal level or the ground level. And what else is given? Angle ACB equals to 30 degree. Now you can see from the figure, this side is given, this we have to find. So what trigonometric ratio we can use? Perpendicular upon hypotenuse. So what will it become? Perpendicular upon hypotenuse. क्या बनेगा हमारे पास? AB upon AC equals to perpendicular upon hypotenuse. It is sine 30 degree. So AB upon AC equals to sine 30 degree. AB is, we don't know. AC is 20 meter. And what is sine 30? I think so it is 1 by 2. This implies AB equals to cross multiply कर देंगे 20 upon 2, that is 10 meter. Therefore, height of the pole is equals to 10. Now question number 2 is, a tree breaks due to storm. तो पहले तो कोई ट्री बना लेते हैं हम. सपोज दिस इज द ट्री. ये हमारा ट्री हो गया. नेम दे देते हैं B. दिस इज A. ब्रोकन पार्ट बेंड. अब कोई भी ब्रोकन पार्ट है. सपोज ये यहां से हमारा ब्रोकन पार्ट है. ये इसको नाम दे दिया मैंने D. ठीक है. So that the top of the tree touches ground. तो ये जो B पॉइंट है ये कहाँ आके टच करेगा? नीचे ग्राउंड पे. तो मतलब यहां से ये ऐसे आके टच हो जाएगा. तो ये वाला जो पार्ट है हमारा ये ऐसे आके टच हो गया. इसको मैंने नेम दे दिया C. ये हमारा ग्राउंड लेवल है. मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट. तो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री. The distance between the foot of the tree and the point where top touches the ground is 8 meter. Foot of the tree and where the top touches the ground, that is C point, so it is 8 meter. Find the height of the tree. तो हमें टोटल क्या निकालना है? ये वाली लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है. आई एम राइटिंग ऑल दीज थिंग्स. लेट AB equals to height of the tree. Height of tree जो हमें फाइंड आउट करनी है. हमें नहीं पता. Let broken part equals to BD equals to CD. और कितना है हमें पता ही नहीं है. तो मैं इसको लेट कर लेती हूं X. This is X and this is X. Suppose this is X meter. Okay. And angle DCA equals to 30 degree. उसके अलावा क्या गिवन है? AC equals to 8 meter.
ऑल दैट वी आर हैविंग इन द ट्राइंगल, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द ट्री। तो जो ए बी हमें फाइंड करना है वो किसके इक्वल है, बी डी प्लस ए डी। बी डी इक्वल है किसके, सी डी प्लस ए डी। तो मतलब हमें क्या फाइंड करना है, सी डी एंड ए डी। आप देखो कौन से ट्राइंगल की बात करोगे, ट्राइंगल इज इन ट्राइंगल ACD angle C is 30 degree, AC equals to 8 meter, CD we don't know और X जो हमें फाइंड करना है और AD भी हमें नहीं पता जो हमें फाइंड करना है। तो पहले देखो, दिस इज द बेस, दिस इज द हाइपोटेनस, दिस इज द परपेंडिकुलर। तो एक बार मुझे बेस और परपेंडिकुलर के साथ लगाना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, एक बार बेस और हाइपोटेनस के साथ लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या बनेगा हमारे पास, AD अपॉन AC। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan 30 डिग्री। और AD इक्वल्स टू वी डोंट नो, AC is 8 and tan 30 is 1 upon √3। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, AD इक्वल्स टू 8 √3 मीटर। आफ्टर दैट बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, AC अपॉन CD। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या बनेगा, cos 30 डिग्री। AC कितना है हमारे पास, 8 मीटर, CD हमें नहीं पता या फिर X, और cos 30 डिग्री कितना होगा, √3/2। और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 × 2 इक्वल्स टू √3x और 16 अपॉन √3x। नीचे कभी भी रैशनल नंबर नहीं छोड़ते, इसलिए √3 अपॉन √3 इक्वल्स टू x और 16 √3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू x। तो अगर आपको सिर्फ ब्रोकन पार्ट की लेंथ पूछी हो AD, तो हमारे पास आ गई ऑलरेडी 8 √3। और अगर हमारे पास टोटल जो हमारा ट्री है उसकी लेंथ पूछी है, तो हमारे पास लेंथ ऑफ द ट्री कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू AD प्लस CD। AD प्लस CD या फिर BD, ठीक है। AD आया यहां से हमारे पास 8 √3 प्लस CD है 16 √3 अपॉन 3। तो ये आ जाएगा 24 √3 प्लस 16 √3 अपॉन 3, 40 √3 अपॉन 3 मीटर। So AD upon 8 equals to 1/√3. So AD will be 8 upon √3 or 8 into √3 upon √3 into √3. We have to rationalize, that is 8 √3 upon 3 meter. After that, base upon hypotenuse is AC upon CD, that is cos 30 degree. So 8 upon x equals to √3 upon 2. Cross multiply किया, we will get 16 upon √3 equals to x. Again we have to rationalize क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, √3 है। So √3 से मल्टीप्लाई किया, we will get 16 √3 upon 3 equals to x, that is CD. उसके बाद लेंथ ऑफ द ट्री हमारे पास क्या है, AD प्लस CD। अब क्वेश्चन में दोनों टाइप से आ सकता है, आपसे पूछा भी जा सकता है लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट या लेंथ ऑफ द होल ट्री या लेंथ ऑफ द ट्री रिमेन ऑन द ग्राउंड। तो वो जो भी पूछे क्वेश्चन में आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। AD हमारी क्या थी, जो हमारे पास जो ट्री की लेंथ थी जो ग्राउंड पे थी, CD जो हमारी ब्रोकन लेंथ थी वो है। अगर क्वेश्चन में यही पूछा जाता तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ द ट्री बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, AD प्लस CD दैट इज और AD प्लस PD, क्योंकि BD और CD दोनों की हाइट क्या थी, सेम थी, वही ब्रोकन पार्ट था जो नीचे की तरफ आया था। सो AD हमारे पास क्या है, 8 √3/3 प्लस 16 √3/3। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके हमारे पास क्या आया, 8 प्लस 16 √3 दैट इज 24 √3 मीटर और
cancel out होके 8√3. Now question number 3 is a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. Slides तो सभी को पता ही होंगे. For children below age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at height 1.5 meter and inclined at an angle 30 डिग्री. तो पहले स्लाइड बना लेते हैं. दिस इज माय फर्स्ट स्लाइड. स्लाइड इसी शेप में होता है. ये स्लाइड है हमारे पास ABC. जो AC है वो स्लाइड होती है जिसपे हम स्लाइड करते हैं, और AB क्या हो गई हमारी वर्टिकल डिस्टेंस जो हमें दे रखा है 1.5 मीटर, और BC हमारे पास क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन. तो इसका एंगल हमें कितना दे रखा है 30 डिग्री. ऑब्वियसली ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा. हमें क्या फाइंड करना है स्लाइड की लेंथ यानी कि AC हमें फाइंड करना है. उसके बाद सेकंड में बोला है वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन हाइट ऑफ स्लाइड क्या होनी चाहिए हमारे पास 3 मीटर होनी चाहिए और एंगल कितना होना चाहिए 60 डिग्री. तो यहाँ पे दूसरी स्लाइड बनाते हैं जिसमें एंगल हमारे पास क्या होना चाहिए 60 डिग्री और हाइट क्या होनी चाहिए 3 मीटर. सपोज इसको नेम दे दिया मैंने PQR. तो यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करना है, हमें हाइट ऑफ स्लाइड गिवन है, हमें लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड करनी है दैट इज PR. तो ये है हमारी स्लाइड 1, ये है हमारी स्लाइड 2. तो अब दोनों स्लाइड्स हमें गिवन है. अब देखते हैं फर्स्ट स्लाइड में. ये देखो 1.5 मीटर जो आपको गिवन है दैट इज अ परपेंडिकुलर. जो आपको फाइंड करना है वो क्या है हमारे पास हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा sin 30 डिग्री. तो वहां से हाइपोटेनस आ जाएगा. सेकंड में देखो हमारे पास क्या है दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस एंड एंगल इज 60 डिग्री. अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा हमारे पास साइन 60 डिग्री. वहां से हमारे पास PR की वैल्यू आ जाएगी. तो T रेशियो जो यूज करना है वो कौन सा यूज होगा साइन ऑफ द एंगल. ये आपको खुद करना है. सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस दो क्वेश्चन को कंबाइन करके आपको एक साथ दे दिए.